Hello everyone, in the video series, today we will learn about the subject-verb agreement. In the previous classes, we have discussed about the subject-verb agreement. In today's class, also we will learn about the subject-verb agreement. Means what are the subject-verb agreement and how to use the verb in a sentence. Sentence में verb कैसे use होगा, ये हम इस क्लास में सीखेंगे. You know students, subject verb agreement. In subject verb agreement means if subject is singular then we should use singular verb. If subject is plural we should use plural verb. Okay, so first of all you should identify the subject in a sentence. Means which type of subject is used in a सेंटेंस. सेंटेंस में किस तरह का सब्जेक्ट यूज हुआ है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा. आफ्टर देन वी यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सो थ्रू दीज एग्जांपल्स we have to learn about the subject verb agreement. So let's come to know about the subject verb agreement. So first point is indefinite pronouns. Dear students, in the pronoun section you have learnt about the types of pronoun. Indefinite pronoun is also a type of pronoun. There are many types of indefinite pronoun like nobody, no one, nothing, someone, somebody, something, anybody, anyone, anything, each, none and many more also. और भी बहुत सारे होते हैं. So these indefinite pronouns always used in a singular form. Dear student, ये सभी indefinite pronoun singular form में use होता है. So after the indefinite pronoun we should use the singular verb. So indefinite pronoun के बाद में हम कौन सा verb use करेंगे? Singular verb. Okay, so first of all you should identify the subject. Okay, indefinite, you know what are the subject? Subject means noun may be subject or pronoun also may be a subject. या तो noun subject हो सकता है या फिर pronoun subject हो सकता है. तो indefinite pronoun is also become a subject. Indefinite pronoun भी क्या बन सकता है? Subject हो सकता है. So this is used in a singular form. ये किस में यूज होता है? Singular form में. Okay, so take a example. Through this example, someone has broken the glass. Here someone is an indefinite pronoun. Someone क्या है यहाँ पे? Indefinite pronoun. So someone is in singular form. ये singular form में है. So after the verb, after the subject के बाद में जो verb use होगा which is used in a singular form also, वो भी किस में यूज होगा? Singular form में. यहाँ पे आप देख सकते हो has singular verb है. Okay, another example, none. Dear student, none is also a indefinite pronoun. None भी क्या है? एक indefinite pronoun है. But sometimes it takes singular verb or sometimes it takes plural verb. So either we use singular or plural also. दोनों वर्ब यूज हो सकता है इसमें. सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. बोथ आर राइट अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल. फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ द बुक्स वर रिलेवेंट. इन दिस सेंटेंस वी यूज द वर्ब इन अ प्लूरल फॉर्म. इस सेंटेंस में हमने वर्ब को प्लूरल फॉर्म में यूज किया. अनदर एग्जाम्पल, none of the students was able to complete the work. In this sentence the verb is used in a singular form. इस सेंटेंस में हमने वर्ब को किस में यूज किया? सिंगुलर फॉर्म में. ओके, another point is phrases. Dear students, some phrases means phrases is the group of words. Phrases क्या होती है? Group of words which have some sense but not a complete sense. उसमें कुछ सेंस होता है लेकिन उसका कंप्लीट सेंस उसमें नहीं होता है. ओके, सो वी शुड नॉट यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू दीज फ्रेजेस. तो हमें वर्ब को इन फ्रेजेस के अकॉर्डिंग यूज नहीं करना. सो हाउ वी कैन यूज द वर्ब? तो हम वर्ब को कैसे यूज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आइडेंटिफाई द subject, the head word, the main subject. Okay, subject may be a noun or a pronoun. Subject क्या होगा? Noun या pronoun. So all of the students are going to the library. Dear student, all of the
ऑल ऑफ द इज अ फ्रेज, ऑल ऑफ द क्या है, फ्रेज, सो इट इज नॉट ए सब्जेक्ट, इट इज नॉट आवर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है. सो व्हाट इज सब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट इज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इज इन अ प्लूरल फॉर्म, किसमें ये, प्लूरल फॉर्म में. सो वी शुड यूज द वर्ब इन अ प्लूरल फॉर्म ऑल्सो, तो वर्ब भी हम किस में यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म में. सो स्टूडेंट्स आर, ओके, इट इज अ प्लूरल वर्ब. We should take another example. Some of the milk was split. Some of the is also a phrase. ये भी क्या है, एक phrase है. So what is subject here? Subject क्या है यहाँ पे? Milk is our subject. Milk हमारा subject है. So it is in singular form. So we should use the singular form also. Milk singular है तो हमने इसके according verb use किया जो किस में है, which is in singular form, जो किस में है, singular form में है. Okay, one more example. Each. Dear student, the word each always used in a singular form. जिस किसी भी सेंटेंस में each का यूज होता है वो हमेशा ऐसे सेंटेंस में वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर. सो द वर्ब विल बी कम इन अ सिंगुलर फॉर्म. वर्ब किस कौन से फॉर्म में यूज होगा, इन अ सिंगुलर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, each book was written with a pen. Each book, okay, तो was is a verb, it is used according to each. किसी भी सेंटेंस में अगर each होता है तो हमें verb सिंगुलर फॉर्म में यूज करना होगा. ओके, अनदर एग्जाम्पल, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. डियर स्टूडेंट्स, फ्रेजेस, यू नो अबाउट द फ्रेजेस. फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेजेस क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सो प्रीपोजिशनल फ्रेज इज ऑल्सो है टाइप ऑफ फ्रेज. प्रीपोजिशनल भी एक फ्रेज का एक टाइप है. सो वी शुड नॉट यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. हमें वर्ब का यूज प्रीपोजिशनल फ्रेज के अकॉर्डिंग यूज नहीं करना. सो वी शुड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा. सो द वर्ब विल बिकम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब. इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी शुड यूज द प्लूरल वर्ब ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, द गिफ्ट इनसाइड द बिग बॉक्स इज माइन. हियर inside the big box, inside the big box, it is a prepositional phrase. ये क्या है, एक prepositional phrase. So we should not use the verb according to this prepositional phrase. So how do we use verb? We should use the verb according to this subject. The subject is the gift. The gift is in singular form. So we should use the verb in a singular form. Now we are taking some more example. Through these examples we have to learn about the subject verb agreement. So or, either or, neither nor, you know, these are the conjunctions. Dear students, these are the conjunctions. So either my dad or my brother is going to station. You know, either or neither nor, या फिर और, ये सभी कंजक्शन होते हैं. इसमें देर आर टू सब्जेक्ट्स आर यूज्ड. ये ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, दो सब्जेक्ट यूज होते हैं. इफ आइदर द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म वी शुड यूज प्लूरल वर्ब. इफ बोथ द सब्जेक्ट इज यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म देन वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब. यदि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. यदि दोनों सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. लुक हियर, आइदर माई डैड और माई ब्रदर. इन दिस सेंटेंस माई डैड इज ऑल्सो इन सिंगुलर फॉर्म, माई ब्रदर इज ऑल्सो इन सिंगुलर फॉर्म. देन वी शुड यूज द वर्ब इज इन सिंगुलर फॉर्म ऑल्सो. तो हमें वर्ब को कौन से फॉर्म में यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में. वाई, बिकॉज बोथ द सब्जेक्ट are used in a singular form. If one subject is in singular form and one subject is in plural form, then how we can to do? तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, what will we do? हम क्या करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन होती है, एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और दूसरा सब्जेक्ट
प्लूरल होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा? इन दिस सिचुएशन वी हैव टू लुक एट द सेकेंड सब्जेक्ट। ऐसी सिचुएशन में हमें किस पे देखना है? सेकेंड सब्जेक्ट को देखना है। इफ सेकेंड सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर फॉर्म देन वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब। इफ सेकेंड सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म देन वी शुड यूज प्लूरल वर्ब। लुक हियर, नाइदर द गाइड नॉर द टूरिस्ट। और फर्स्ट सब्जेक्ट इज द गाइड। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? द गाइड, एंड द सेकेंड सब्जेक्ट इज टूरिस्ट। द गाइड इज इन सिंगुलर फॉर्म एंड द टूरिस्ट इज इन प्लूरल फॉर्म। सो we should not use the verb according to first subject. We should not use the verb according to first subject. We should use the verb according to second subject. Our second subject is in plural form, then we should use the verb is in plural form. Okay, the answer will be verb. The answer will be verb. Verb इसका correct answer होगा. The correct answer will be verb. ओके, सम सेंटेंस हैव इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, लाइक देयर, हियर ऑल्सो। ओके, कुछ सेंटेंस होते हैं जो हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं। सो इन सच काइंड ऑफ सेंटेंस वी शुड नॉट यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू हियर और देयर। इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे उसमें वर्ब हम हियर और देयर के अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे। The verb will be used according to subject. Okay, so we have to identify the subject in a sentence. हमें verb के sentence के अंदर subject को identify करना होगा। So you know, subject may be a noun or pronoun. Subject क्या होगा? या तो noun होगा या फिर pronoun होगा। Okay, here are the books. Here are the books you are looking for. Okay, so here is not a subject. Here subject नहीं है. So what is the subject? The subject is the books. The subject is books. Books. The books is in plural form. ये किस में यूज हो रहा है? Plural form में. तो verb is used according to the books. So the correct answer will be are. Why? Because it is used in a plural form. Second example. There is a nice coffee shop in the next lane. So there is not a subject. It is not a subject. So what is subject here? A nice coffee shop. A nice coffee shop is a subject. So we should use the verb according to this subject. So the correct answer will be is. Correct answer क्या होगा? Is. Why? Because this subject is in singular form. इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट में एक सिंगल वर्ड हो। ओके, इट मे हैव कंपाउंड वर्ड्स ऑल्सो। इसमें मोर देन वन वर्ड्स भी यूज हो सकता है। सम कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स यू हैव टू लर्न इन द नाउन सेक्शन। नाउन सेक्शन में आपने कलेक्टिव नाउन के बारे में अच्छे से पढ़ा है। ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ नाउन। ये भी नाउन का एक काइंड है, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप, ज्यूरी, फैमिली, ऑडियंस। ओके, सो इन सच काइंड ऑफ सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस में हाउ वी शुड यूज द वर्ब, कैसे हमें वर्ब को यूज करना चाहिए। अगर सेंटेंस में एक यूनिनिमस मीन्स एक ही विचार है, एक वन आइडिया, वन ओपिनियन, अगर एक ही आइडिया है, एक ही विचार है, तो हमको वर्ब यूज करना चाहिए इन सिंगुलर फॉर्म। तो हमें वर्ब को सिंगुलर फॉर्म यूज करना चाहिए। अगर उस सेंटेंस की आइडियाज, ओपिनियन डिफरेंट है, अलग अलग है, ओके, देन वी शुड यूज द वर्ब इन अ प्लूरल फॉर्म। लुक हियर, द ज्यूरी वाज यूनिमियस इन इट्स डिसीजन। इसमें आप देख सकते हो इस सेंटेंस में जो ओपिनियन है वो सबका एक है। ओके, एक मत है, सभी का विचार एक है, तो हम वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। इन द नेक्स्ट एग्जांपल, द ऑडियंस हैव मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट द प्ले। इस सेंटेंस में क्या है? सबके ओपिनियंस, ओके, आइडियाज डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम वर्ब यूज करेंगे हैव इन अ प्लूरल फॉर्म। सो हैव विल बी द करेक्ट